we are extremely saddened and traumatized over the incident. The thing is, the baby was born yesterday through two interventions. First of all, forceps delivery was tried, and then a cesarean section was performed. Post cesarean section, the baby did not cry. Then there was some breath sounds, heart sounds, which was deteriorating slightly, rapidly. Then the baby was transferred to SNC, where the doctor intervened, but there was the baby could not be saved. So one of the thing is, the doctor operated the patient. He was a gynecologist, and he has been asked not to operate in this hospital anymore. We are in the verge of getting 2-3 more gynecologists in the next 2-3 weeks. Our maternal health is by far, not to say, but I need everybody should please know this. We have 0 maternal deaths compared to other districts, but unfortunately this baby suffered, and the family has been suffered a loss. So I think this should not continue, and our investigation will be performed with the doctor concerned who has operated, and we will find out. Sir, one question. As you explained us, he should not continue. Can you please tell all of us that why he should not be continued in the operation theatres? Why? Because actually he is here for the last 6 years or more. He has operated. So it will be better if you give the statement in Hindi. It will have a better understanding. The doctor यहाँ पर है, जो डॉक्टर ऑपरेट किया है, 6 साल से यहाँ पे है, बहुत सारे ऑपरेशन उन्होंने किए हैं, तो which has been successful. Yesterday also, कल भी वो किए थे एक सीजरियन सेक्शन, और उसके हिसाब से सीजर first सीजर was okay. The second one led to a seizure, क्योंकि वो प्राइमी मदर था, फर्स्ट चाइल्ड. तो यूजुअली फर्स्ट चाइल्ड जब होते हैं तो सीजर इज नॉट यूजुअली परफॉर्म. वी ट्राई द नॉर्मल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. माय क्वेश्चन इज, आप क्यों अभी कह रहे हैं कि वो डॉक्टर को अभी परफॉर्म नहीं करेगा ऑपरेशन? There is one more question. The patient was admitted on the 6th. Where was the doctor? सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं. हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है. Like 6 she was admitted. From 6 to 7 the patient was in the hospital under the doctor. But where is the doctor who was in charge to do the operation on the 7th? Why is the patient being operated on the 8th or on the 9th? When was the operation, Margo? 8th. Labor room was it? Where was the doctor then? See, one more question here is, the doctor that was in charge of the patient, that doctor is not there. But this doctor who is not capable of operating the child, he is there. Where is the doctor in charge? Who is supposed to operate the patient? See, and since you said this question, you put it up. First pregnancy. अरे यार डॉक्टर, हम लोग अभी first pregnancy इधर के, they put us here only. They didn't wait for normal delivery or cesarean. They saw the mother is not doing good. They took the patient immediately wherever they can. But why today they're waiting for this lady to deliver normally or cesarean? You know what it is? It's become like a game now. If the
patient can do normally, they will wait. If not emergency, Siliguri straight. Why is that also? Why to wait? If the doctor is there, do the operation, no? If you know the doctor, she cannot deliver it normally, so do the operation. Why wait? There is a certain process. And I believe, sorry to cut you off, doctor. I believe patient 24 घंटा तो सिर्फ लेबर रूम में था. तो हम तो normally as a layman again, what I think is the patient should not be in the labor room for a long time. 24 घंटा तो नेट उसको लेबर रूम में रखा. तो ऐसा क्या कालिम्पोंग के हॉस्पिटल में बिल्कुल डॉक्टर नहीं है कि एक डिलीवरी पेशेंट को 24 घंटा लेबर रूम में रखना पड़ता है? ऐसा तो कैसा हो सकता है? वहाँ एक पार्टोग्राम बोल के एक ग्राफ है. वो पार्टोग्राम के हिसाब से when the partogram shows certain dilatation, then we take the patient to the labor table. On the labor table, they are since she is the first mother, so there is a period of 12 to 16 hours where we keep the baby. We observe the mother and the child for a normal process. If the normal process does not happen, then we go for the cesarean section, because every time there is a cesarean section performed on a first child, first mother, then the uterus gets cut, and when the uterus gets cut, subsequent pregnancies becomes a risk. So have you determined the cause of death for the baby? It will what the doctor writes, we have to see. Has there been a postmortem conducted? Now the postmortem needs certain requirements, like we need permission from the family for a postmortem, because the patient has passed away in this place only under the supervision of a doctor. So postmortem can only be performed when there is application from the patient party, from the patient family people, that a postmortem needs to be performed for future inquiry. 10 साल के हैं. तो लास्ट सबसे बात जो एलिगेशन है मेट्रांकिन हो वो ठीक नहीं है. और ये वाला जो मेरा प्रॉब्लम होता है, मेरा स्पीकिंग प्रॉब्लम होता है, और इसके पहले मैं बहुत सारे ऑपरेशन किया हूँ, तो किसी का तो ये नहीं हुआ, मदर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. सीजर में कुछ अगर प्रॉब्लम होता तो मैटरनिटी. 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा. हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल. या कुछ कॉम्प्लिकेशन होता वो तो आप लोग जानते हैं, परंतु यहाँ पर कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत दिन तक मैटरनल डेथ नहीं हुआ, 0 था. एक कुछ दिन पहले एक हुआ, शायद 1-2 हुआ, तो 0 तो नहीं था. 0 तो नहीं था. हाँ, 3 साल तक 0 था. तब अभी तो रिसेंटली 2-3 हो गया. अब रिसेंटली 2-3 हुआ है. तो हम लोग तो कोशिश करते हैं, और मेरा ये वाला प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जब ऑपरेशन करता हूँ तब मेरा दिक्कत होता है. ये नर्व का जो प्रॉब्लम है, मेरा पैदल चलने में, स्पीकिंग करने में प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम है. ऐसा कोई बात नहीं है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन ये प्रॉब्लम होता है. अगर ये होता तो सिस्टर लोग ही बताते, जो हम लोग असिस्ट करते हैं, वो लोग ही बताएंगे कि मेरा कोई प्रॉब्लम है कि नहीं ड्यूरिंग ऑपरेशन. मेरा एक प्रॉब्लम होता है, मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता था, क्योंकि मेरे पैर में एक प्रॉब्लम है. मेरा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टियर हुआ था, उसका रिप्लेसमेंट हुआ है. ठीक है, इसके लिए तो ड्रंकन एट फर्स्ट नहीं हो. सेकेंडली मैं जब करता हूँ ऑपरेशन तो प्रॉब्लम नहीं होता है. ठीक है, मेरा एक सिर्फ स्टैंडिंग होने में प्रॉब्लम होता है, और 2 ऑपरेशन अगर होता है तो कुछ देर तक मैं बैठता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, क्योंकि मेरा स्पाइनोसेफेलाइटिस करके वो वाला भी है, उसके साथ साथ नार्कोलेप्सी करके और एक डिजीज है, उसके लिए भी दवाई हम खाते हैं ना. गूगल में सर्च कर लीजिएगा नार्कोलेप्सी क्या होता है. ठीक है, और एक क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस भी हुआ है, मेरा थायमेक्टोमी हो गया. मैंने ये एक ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन होता है. अच्छा,
तो मैं बहुत क्या कहते हैं बहुत डिजीज हूँ एक्चुअली, परंतु ये डिजीज मेरा काम में दखल अंदाजी नहीं करता है। अच्छा, ट्रंक नहीं और ये और जो एलिगेशन कर रात को जो बच्चा मरा, वो तो एलिगेशन नहीं है, वो इंसिडेंट है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, वो एलिगेशन नहीं है ना मेरा भूल हुआ था, इसलिए तो आप लोग बोल रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट एलिगेशन है ना, आप लोग तो बोल रहे हैं वैसे। A newborn child has lost his life. हाँ, ये तो बहुत So it is खराब not हुआ। about you, it is about the child, dear doctor. हम लोग तो नहीं चाहते हैं, इसके पहले अगर हुआ वो भी मेरी जिम्मेदारी नहीं था, मेरा प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, इसके बारे में डॉक्टर साहब, अरे आप फिजिकली फिट नहीं हो, आप खुद बता रहे हो, फिर कैसे आप ये ऑपरेशन कर रहे थे? आपको सुनाई नहीं दिया कि ड्यूरिंग ऑपरेशन मेरा ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता। अगर होता तो हम इसके पहले भी ऑपरेशन के दौरान कुछ प्रॉब्लम होता किसी पेशेंट का। मैं तो 2020 से यहाँ हूँ और बहुत सारे ऑपरेशन किया हूँ, एक भी अगर मेरा प्रॉब्लम हुआ तो ड्यूरिंग ऑपरेशन होता। ओके सर, कल का इंसिडेंट क्या है सर? हाँ, वही बोलना, तो वो एक बड़ा एलिगेशन मेरे अगेंस्ट है, वही बोल रहा हूँ। अच्छा, प्रेग्नेंट रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। मन 3 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं जिसका पहला बच्चा होता है, ठीक है। तो पहला बच्चा जिनका होता है उनका थोड़ा लेट होता है बच्चा होने में, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इनका डेट ऑफ भी था 30/5 को 35, तो उससे कैलकुलेशन करके हम लोग का होता है 9/3 को, ठीक है, ईडीडी होता है बाई डेट, और बाई यूसी भी एक होता है बाय डेट। तो ओके सर, कल का जो इंसिडेंट हुआ है तो कॉज ऑफ डेथ क्या था वो बता दीजिए। कल का जो इंसिडेंट का कॉज ऑफ डेथ था, अच्छा देखिए, मैं उसको देखने के लिए गए थे बार बार। तो हम लोग पहले एक पेन ले आने के लिए दवाई देते हैं, प्रोटीन इब्यूटेसिन करके दवाई देते हैं पेन होने के बच्चे मैंने माँ का पेन होने के लिए और बच्चा निकालने के लिए, ठीक है। यार ये पहला वाला बच्चा है, थोड़ा टाइम लगता है और हम लोग चाहते हैं फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, हम पहले ही नहीं चाहते सीजर हो, ठीक है, क्योंकि सीजर का बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले ट्राई किए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, हम लिए 10 सेंटीमीटर और खुल गया, मैंने पूरा खुल गया, हमारा बच्चा निकलने वाला था। तब सिस्टर लोग मुझे बुलाए कि सर आप आइए, बच्चा नहीं हो रहा है, थोड़ा माथा अटक गया है शायद, क्या पट बोलते हैं उसे हम लोग। सर नॉर्मल डिलीवरी तो आप वहाँ पे उपस्थित नहीं थे? अरे डॉक्टर नहीं थे तब वहाँ पे? अरे सुनिए ना, मैं था मैटरनिटी वार्ड पे और लेबर रूम बाजू में है, लेबर रूम हम लोग के बाजू में है, ठीक है। हम मैटरनिटी वार्ड पे थे यहाँ पर से, और यहाँ से जस्ट एक दरवाजा, जस्ट लेबर रूम, ठीक है। तो तो हम तुरंत गए, देखे कि बच्चे का माथा थोड़ा अटक रहा है, तो हम लोग फोर्सेस करते हैं उसके लिए, ठीक है। फोर्सेस भी एक प्रोसीड्यूर जिससे माथा निकालने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो ट्राई किए पहले, तो वो ट्राई करने के दौरान हम देखे नहीं हो रहा है, फोर्सेप फेल्योर होता है, ठीक है। तो फोर्सेप से थोड़ा इंजुरी होने का चांस है बच्चे का, क्योंकि माथा पकड़ता है तो ऐसे करके थोड़ा इंजुरी होने का चांस है। तो उसका आंख में या यहाँ पर अगर कोई ये वो रहा इंजरी हुआ तो फोर्सेप से हो सकता है, ठीक है, तो हो सकता है। अच्छा, तो हम लोग पहले फोर्सेप किए, तब वो नहीं हुआ, तब हम देखे थोड़ा मेकोनियम स्टेन आ रहा है। मेकोनियम स्टेन हमको पता चलता है ये देख के कि वो ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश मीन्स ग्रीन कलर का मेकोनियम स्टेन होता है ऐसा। और उसके दौरान थोड़ा हार्ट रेट बच्चे का थोड़ा लो हो रहा था,
ठीक है, 75 72 उसका नॉर्मल होता है 110 से 160, ठीक है। तो इसका थोड़ा कम हो रहा था, तो हम लोग हम डिसीजन लिए कि सीजर करना होगा, ठीक है। तो सीजर के लिए हम लोग एनेस्थेसिस्ट को बुलाते हैं, एनेस्थेसिस्ट को कॉल किए, एक बच्चा ऐसा है, पेडिकट हो रहा है, और ये किया तो मैंने क्या कहते हैं, और क्या है उसको, अरे फॉरसेप्स किया और नहीं हो रहा है, फेलियर हो रहा है, इसलिए करना होगा सीजर। तो हम उनको 7 रुपया माँ 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में? વાવ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી ભાગ્ય બદલીને બાટો। और इस दौरान मम्मी को वो जो उसका जो ब्रेडिकर्डियो हो रहा था, बच्चे का कम हो रहा था हार्ट रेट, उसके लिए ऑक्सीजन दिए, ठीक है, ऑक्सीजन दिए और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखे, ये रखते हैं हम लोग बच्चे को ठीक रखने के लिए पेट के अंदर, ठीक है। तो ये किया, तो इस दौरान उसके बाद हम लोग सीजर शुरू किए कुछ देर बाद ही, ठीक है। तो सीजर जब शुरू किए तो बच्चा निकल तो विक्टिम स्टेन था और गले के अराउंड कॉर्ड था, मैंने कॉर्ड मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, वो अम्बिलिकल कॉर्ड ये हुआ था 1 या 2, ठीक है, 2 था। तो उसमें थोड़ा सांस का दिक्कत होता है और मेकोडियम एस्पिरेट करता है, ठीक है। ये मेकोडियम एस्पिरेट किया और सांस का दिक्कत हुआ, इसलिए बच्चा होने के बाद ठीक से रोया नहीं, वो क्राई करते हैं, इमीडिएट क्राई होता है बच्चा होने के बाद, ठीक है। ये वाला एक बड़ा अच्छा साइन होता है, अच्छा साइन था कि बच्चा ठीक है कि नहीं। तो अब बच्चा निकाल के हम लोग कॉर्ड सेपरेट करते हैं, हम लोग कॉर्ड सेपरेट करके बच्चे को हैंड ओवर किया सिस्टर को, सिस्टर वहाँ से लेकर गया, क्या कहते हो, सेंचुरी। पहले तो वहाँ पर जो ये होता है वारमार्ट, वहाँ पर का डॉक्टर था, डॉक्टर मार्टिन, वो था, वो तुरंत उसका इसमें चले गए, तभी बच्चा जिंदा था, ठीक है, बच्चा जिंदा था। और वो लोग रिससिटेट करने लगे, तो रिससिटेट भी सक्शन, वो जो अंदर में घुसा था वो अंदर में घुसा, तो वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितने घंटे आगे तक या कितने घंटे तक पेशेंट को रखते हैं लेबर रूम में? यहाँ सुनिए, जो नॉर्मल होता है प्राइमरी, जिसका पहला बच्चा होता है, उसका टाइम ज्यादा लगता है, कितना घंटा? और ये पकड़िए कि 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर तक होता है किसी का। और हम एक्टिव लेबर और पैसिव लेबर करके एक चीज होता है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर औस होता है, 4 सेंटीमीटर औस। मेरा क्वेश्चन है कितना घंटे तक लेबर रूम में रखते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। अगर बच्चा सुनिए ना, उससे कोई बात नहीं होता है। अगर बच्चा का हार्ट रेट ठीक रहा तो हम लोग वेट कर सकते हैं, नहीं तो सीजर बढ़ जाएगा, सबका सीजर हो जाएगा। जो ये प्रॉब्लम है ना, जो आपने बोले खड़े होने नहीं सकते, खड़े में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा ज्यादा टाइम तक पकड़िए जाइए 1 घंटा, 1 घंटा। उसके बाद हम तुरंत सपोर्ट ले लेते हैं। आप सीजर बैठ के करते हैं या खड़े? खड़े होकर ही करता हूँ, थोड़ा सपोर्ट ले लेते हैं, फिर ये ऐसे कर लेते हैं। ये तो मैं कर रहा हूँ पहले से, ये फर्स्ट टाइम नहीं है मेरा। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं जब बच्चा निकाला हाथ से, कॉर्ड काट के दे दिया पीडियाट्रिशियन को। मुझे तो पता नहीं बच्चा कैसा है, बच्चे का हार्ट रेट तो मैं उस वक्त नहीं देखा, वो देखे वो बच्चे को you can have 2-3 questions in a minute's time. वो बोले तो बच्चा जिंदा है, क्योंकि उसका अम्बिलिकल पल्सेशन था, वहाँ पर लिखा है मेरा ओपिनियन। कल पिक्चर खींचे थे आप लोग।
Anyway, sir, today we are meeting on a very unfortunate incident. Because of this incident, I have come here not just representing the victim family, but as a civil society member of Kalimpong, because I represent all the NGOs of Kalimpong, by the NGO network and rest of the NGOs, and he is a part of my NGO hands also. So I am telling you all these things because 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Food, butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुरी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुरी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001. કન્સલ્ટેશન અવેલેબલ વિથ ડોક્ટર્સ. કિન્નહોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનહોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।